Now tell me, if you really know where the apostrophe is meant to go, that your is not quite the same as your. That's the sort of mistake I deplore. Learn the difference between who's and who's, and never mix up blues with lose, which are the opposites of tight and fine, or you'll get left right behind. In this language game we're about to play, and if you say word, you'll be late by a day. Then your efforts won't come up to scratch when we get down to play some word match. For your attempts will unravel, they'll come loose, and you won't be able to win. You just might lose. You must pay attention to spellings too. Listen carefully to every single clue, and remember, flu is not the same as flu. Then your efforts won't come up to scratch when we get down to play some word match. I asked them to take a poem and hold it up to the light like a color slide, or press an ear against its hive. I say, drop a mouse into a poem and watch him probe his way out. Or walk inside a poem's room and feel the walls for a light switch. I want them to water ski across the surface of a poem, waving at the author's name on the shore. But all they want to do is to tie the poem to a chair with a rope and torture a confession out of it. They begin by beating it with a hose to find out what it really means. The poem was The Introduction to Poetry by Billy Collins. Hello and welcome to another episode of Word Match. मैं हूं आपका होस्ट केसी शंकर. आज का एपिसोड फोकस करता है उस आर्ट पर जिसे हम पोएट्री कहते हैं. That much maligned and misunderstood form which is forced upon us, which we are taught to recite and to understand. सच्चाई तो ये है कि आप पोइट्री में मीनिंग फोर्स नहीं कर सकते और ना ही रिदम. पोइट्री इज इनएफेबल बट कैन मूव यू लाइक नथिंग एल्स. हर पोएम यूनिक है, जिस तरह हमारे इस शो पर आने वाला हर कंटेस्टेंट, हर टीम यूनिक है. एंड पीपल लाइक पोइट्री मस्ट बी हर्ड टू बी अंडरस्टूड, नॉट डिफाइंड एंड फोर्स्ड इनटू कन्वीनियंट लिटिल बॉक्सेस. और आज क्वार्टर फाइनल के इस एपिसोड में लेट अस वेलकम आवर 6 यूनिक पोएम्स, 6 यूनिक पर्सनैलिटीज. एंड आवर फर्स्ट टू फ्रॉम भवन्स विद्याश्रम चेन्नई आर अभिजीत एंड ध्यान. लेट्स वेलकम देम. वेलकम टू वर्ड मैच. Thank you. कैसा लग रहा है फिर से आके? It feels good to be back. Prepared to play today? Yes. Should we call our next teams? Yes. Let's call our next team. बिरला विद्या निकेतन दिल्ली से उर्वी और ऋषभ को बुलाते हैं. Welcome to Word Match. How does it feel to be in the quarterfinals? Very thrilling. It's very pleasant and we are very excited to come back to this entertaining show. Should we call our next teams? बुला लेते हैं इनको भी. बक्सी जगबंधु से बुलाते हैं सिमरन और सौम्या को. सिमरन एंड सौम्या, वेलकम बैक टू वर्ड मैच. Thank you. कैसा लग रहा है इस बार? अच्छा लगता है. अच्छा लग रहा है. Which of you plays with words? पोएम्स लिखते हैं? आप पोएम्स लिखती हैं? जी हाँ. मेरी एक पोएम थी स्प्रिंग के बारे में. Trees with rich blossoms and flowers tempting, you feel like taking a round, a look in the garden, which makes you more interesting. Nice. Thank you for sharing your poem with us. स्वागत है आप सभी का वर्ड मैच के इस क्वार्टर फाइनल में. And today our theme is poetry. Robert Frost, one of the greatest poets to write in the 20th century, once said about poetry, poetry is what gets lost in translation. और हमने आपके लिए भी कुछ बहुत ही पोएटिक शब्द ढूंढ के निकाले हैं. लेकिन तकलीफ यह है कि वो हिंदी में है और आपको उनका ट्रांसलेशन जो है हमें अंग्रेजी में करके दिखाना है. कर पाएंगे आप लोग ये? Yes. तो शुरू करते हैं हमारा पहला गेम, जिसका नाम है लॉस्ट इन ट्रांसलेशन. बजर राउंड है. जो टीम पहले बजर दबाएगी उसे जवाब देने का मौका मिलेगा.
हर सही जवाब के लिए आपको मिलेंगे 30 पॉइंट्स, हर गलत जवाब के लिए आपके कट जाएंगे 10 पॉइंट्स। खेले हमारा पहला गेम जिसका नाम है लॉस्ट इन ट्रांसलेशन। पहला शब्द तीनों टीम्स के लिए है दामिनी। दामिनी फिल्म बनी थी एक, और आपका टाइम खत्म हो चुका है, तीनों ने बजर नहीं दबाया है। दामिनी का मतलब होता है लाइटनिंग। अगला शब्द आश्वासन। अक्सी जगबंधु आपने बजर दबा दिया है, जवाब दीजिए। Satisfaction. सेटिस्फैक्शन कहना चाह रहे हैं आप, सही जवाब नहीं। आई एम नॉट सेटिस्फाइड विथ योर आंसर बिकॉज सही जवाब होता है होप। आश्वासन यानी कि होप। आपके 10 पॉइंट कट चुके हैं जवाब के लिए। मेरा अगला शब्द आपके लिए है महासागर। भवन राजा जी Ocean. आपने कहा ओशन, और ये बिल्कुल सही जवाब है फॉर 30 पॉइंट्स। वेल प्लेड। अगला सवाल तीनों टीम्स के लिए, हैंड्स ऑन योर बजर्स प्लीज। चक्षु। बिरला विद्या निकेतन Eyes. आपने कहा आईज या आई, आपने कमाया है 30 पॉइंट्स। वेल प्लेड। अगला शब्द तीनों टीम्स के लिए है निर्माता। भवन राजा जी चेन्नई, Mother. और इस बार ये बिल्कुल और बिल्कुल गलत जवाब। बिल्डर या प्रोड्यूसर कहा जा सकता है। भवन राजा जी इस जवाब के लिए आपके 10 पॉइंट कम हो चुके हैं, -10 पॉइंट्स। अगला शब्द है पाक। पाक। पाक इरादे या नेक और पाक इरादे होते हैं, और आपका टाइम खत्म हो चुका है। पाक यानी कि होली। अगला शब्द तीनों टीम्स के लिए, और ये शब्द है चंद्रिका। बिरला विद्या निकेतन, Eyes. चक्षु का भी आपने कहा था आइज, मैंने पूछा है चंद्रिका। आपका जवाब तो बिल्कुल गलत है, -10 पॉइंट्स हो गए आपके। चंद्रिका यानी कि मूनलाइट। अगला शब्द तीनों टीम्स के लिए रहस्य। बक्सी जगबंधु, Mystery. Mystery. मिस्ट्री सीक्रेट, दोनों ट्रांसलेशंस एक्सेप्टेबल है। 30 पॉइंट्स कमाए आपने। अगला शब्द भोर। बिरला विद्या निकेतन, Early morning. Early morning. अर्ली मॉर्निंग, और ये बिल्कुल सही जवाब है फॉर 30 पॉइंट्स। वेल प्लेड। अगला शब्द षटकोण। Hexagon. आपने कहा हेक्सागन, बिल्कुल सही जवाब है ये फॉर 30 पॉइंट्स। वेल प्लेड बक्सी जगबंधु। एंड दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ एन एक्साइटिंग फर्स्ट गेम। देखते हैं किसके स्कोर्स क्या एक्सप्रेस करते हैं। हियर आर द स्कोर्स फॉर गेम 1। भवन राजा जी चेन्नई, आपका स्कोर हो गया है 20 पॉइंट्स। बिरला विद्या निकेतन, बक्सी जगबंधु, आप दोनों के स्कोर्स हुए हैं 50-50 पॉइंट्स ईच। वेल प्लेड। आमतौर पर पोएट्री के कुछ कन्वेंशनल रूल्स होते हैं, जैसे राइम, मीटर एटसेट्रा, लेकिन कवियों को अपनी नायाब सोच को रूल्स की दीवारों में जकड़ना मंजूर नहीं होता। वो तो आजाद पंछी की तरह बेधड़क उड़ना चाहते हैं। कविता एक नदी की तरह होती है, अगर उसे आप बांधने की कोशिश करेंगे तो वो अपनी खूबसूरती, अपनी लय खो देगी। एंड सो over a period of time, many writers have written poetry in their own inimitable style. Be it Oliver Goldsmith, जो होंठों पे हंसी के साथ आंखों में आंसू ले आते थे, या लिरिक्स और टेक्निक के बादशाह W.S. Gilbert, or W.H. Auden, whose poems focused on the ways in which words revealed and concealed emotions. जब तक सही हो, कोई भी तरीका अपना सकते हो, and that goes for you too. क्योंकि अगले गेम में आपकी कोई भी स्ट्रैटेजी हो, कोई भी अप्रोच हो, आपको एक ही काम करना है, और वो है हमारे दिए गए सेंटेंसेस को ठीक करना है। हम आपको 4 सेंटेंसेस देंगे, उनका ग्रामर बिगड़ा होगा और आपको उनका ग्रामर सुधारना है। 90 सेकंड का टाइम है आपके पास। पहले 2 सेंटेंसेस होंगे जंबल्ड सेंटेंसेस, अगले 2 सेंटेंसेस है बिल्कुल ही गलत, उनका ग्रामर बिल्कुल ही बिगड़ा हुआ है और आपको उन्हें सुधारना है। हर सेंटेंस के आपको मिलेंगे 30 पॉइंट्स। तो खेले हम ये दूसरा गेम जिसका नाम है द ग्रामर गेम, और हम शुरू करेंगे भवन राजा जी चेन्नई के साथ। पहला सेंटेंस भवन राजा जी चेन्नई के लिए है, द हीट लर्न्ड और हैव टू बेयर सोल्स। Pass.
आप पास करना चाहते हैं। अगला सेंटेंस है strangers is not something to talking do usually I. Talking to strangers is not something I do usually. That is correct. Your next sentence is and thousands geniuses lives and dies undiscovered or in themselves either in other. Thousands of geniuses live and die undiscovered or in themselves. It is incorrect. आप चाहे तो अगला सेंटेंस ले सकते हैं। Pass. अगला सेंटेंस है poetries are emotions that are being recollection in tranquility. Poems are emotions that are recollected in tranquility. That is correct. I will accept that. And your time is up. यानी कि 2 sentences आपने ठीक किए हैं। पहला sentence जो आप नहीं कर पाए, you passed on. Our souls have learned to bear the heat. तीसरा sentence, 1,000 geniuses live and die undiscovered either by themselves or by others. 2 sentences आपने ठीक किए हैं भवन राजा जी। बिरला विद्या निकेतन दिल्ली, आपकी बारी है। आपका पहला sentence है Tell the truth if you don't remember anything have to you. You have to tell the truth if you don't remember anything. That is correct. Your next sentence is without a man approval cannot be his own comfortable. A man cannot be comfortable without his own approval. That is correct. Your next sentence is a rainy days mean indoor playing by the 3 Forrest brothers. Means in playing the इसी मतलब को जाहिर करिए सही से बोल के, सही ग्रामर में। pass. पास करना चाहेंगे। आपका अगला सेंटेंस है clots in blood have hardened on his beard and on his hairs. Clots of blood have hardened on his beard and on his hair. That is correct. And your time is up. तीसरा सेंटेंस जो आपने नहीं किया सही से, उसको अगर आप सही से बोलते तो ऐसा होता A rainy day meant indoor play for the 3 of us brothers. But very well played, बिरला विद्या निकेतन। बक्सी जगबंधु भुवनेश्वर, आपका पहला सेंटेंस है Have opportunity the I not speak with had him this morning too. Pass. पास किया आपने। आपका अगला सेंटेंस है A candle it is dangerous to keep at lit always night. It is dangerous to keep a candle lit at night always. I will accept that. Your next sentence is I asked her how many she loved me and she was replied with a hug and a peck. I asked her how much she loves me, and she replied with a hug and a peck. That is correct. Your next sentence is them all has somewhere from go, someone from meet or something from buy. They all have somewhere to go, someone to meet, or something to buy. And that is correct. And your time is up. 3 sentences आपने करेक्ट किए हैं। आपका पहला सेंटेंस जो आप नहीं कर पाए, जो जंबल सेंटेंस था, I have not had the opportunity to speak with him this morning. 3 sentences. Very well played, बक्सी जगबंधु. Well played. तो इस तरह खत्म होता है हमारा ये दूसरा गेम जिसका नाम था द ग्रामर गेम। तो आइए देखते हैं हमारे इस ग्रामर गेम में whose technique is the most sound. भवन राज जी चेन्नई, आपने 2 सेंटेंसेस करेक्ट किए हैं, यानी कि आपने कमाए हैं 60 पॉइंट्स। बिरला विद्या निकेतन दिल्ली, आपने 3 सेंटेंसेस करेक्ट किए, आपने कमाए हैं 90 पॉइंट्स। बक्सी जगबंधु भुवनेश्वर, आपने भी 3 सेंटेंसेस करेक्ट किए हैं और आपने भी कमाए हैं 90 पॉइंट्स। वेरी वेल प्लेड इंडीड। We shall continue this rhythmic show, but after a very short break. बस you गए और you आए. Don't go anywhere. वेलकम बैक टू वर्ड मैच, इंडिया का पहला इंग्लिश लैंग्वेज गेम शो जहां हमारे कंटेस्टेंट्स खेलते हैं और घर बैठे बैठे आप लोग अंग्रेजी सीखते हैं। 2 गेम्स हम खेल चुके हैं।
वक्त आ गया है देखने का अभी तक के स्कोर्स। भवंस राजाजी चेन्नई, आपका स्कोर पहुंच गया है 80 पॉइंट्स तक। आप लोग हैं सेकंड पोजीशन पे। और बिरला विद्यानिकेतन दिल्ली, बख्शी जगबंधु भुवनेश्वर, आप दोनों फर्स्ट पोजीशन पे है और आप दोनों के स्कोर्स है 140 पॉइंट्स। वेल प्लेड। Paul Engel said, poetry is ordinary language raised to the nth power. Poetry is born with ideas, nerved and blooded with emotions, all held together by the delicate, tough skin of words. Words. And words give rise to associations. जब मैं कोई word बोलता हूं तो आपके दिमाग में क्या आता है? For example, tree. Paper. Paper, right? Leaves. Leaves. Wood. Wood. Fruits. Fruits. Rain. Rain. Flowers. Fruits. Oxygen. Oxygen. Shelter. Shelter. कितने वर्ड्स आ रहे हैं ना? इसे कहते हैं वर्ड एसोसिएशन। अब इनमें से एक वर्ड जो आपने बोला वो शायद मेरा होगा राइट वर्ड। यही हमारा अगला गेम है। व्हाट्स द राइट वर्ड? एक राइट वर्ड है जो आपको ढूंढ के निकालना है। 30 सेकंड का टाइम है आपके पास। मैं आपकी मदद करूंगा 3 क्लूज देके। हर 10 सेकंड के बाद एक क्लू मैं आपको दूंगा। अगर एक क्लू और 10 सेकंड के अंदर आपने गेस कर लिया तो आपको मिलेंगे 100 पॉइंट्स। अगर 2 क्लू और 20 सेकंड के अंदर आपने गेस कर लिया तो आपको मिलेंगे 80 पॉइंट्स। और अगर 3 क्लूज और 30 सेकंड के अंदर आपने गेस किया तो आप कमा सकते हैं 50 पॉइंट्स। तो शुरू करते हैं हमारा ये तीसरा गेम जिसका नाम है व्हाट्स द राइट वर्ड। शुरू करेंगे हम बख्शी जगबंधु से। पहला क्लू, अनफेथफुल। Thief. कीप गेसिंग। Relationships. कीप गेसिंग। टाइम मत लगाइए। अगला क्लू, जूडस। बाइबल से रेफरेंस है इसका। Adam. Eve. कीप गेसिंग। आपका अगला क्लू है डिसीव। Mistrust. वेरी क्लोज। और कोई वर्ड? Disbelief. Your time is up. Or betray was my right word. To be unfaithful is to betray a cause or someone. Judas ने Jesus Christ को betray किया था और deceive is the same as betray. बिरला विद्यानिकेतन दिल्ली, आपकी बारी है। आपका पहला क्लू है charm. CHARM. Charisma. Talent. Handsome. Flatter. Flatter. आपका अगला क्लू है ornament. Gold. पहला क्लू को भूलिए मत। पहला Jewelry. क्लू है Jewelry. charm। Jewelry. दूसरा है ornament। आपका तीसरा क्लू है wrist। Watch. Watch. Bangle. Bracelet. Bracelet. और आपने कहा bracelet and that is our right word। भवन राजा जी चेन्नई, आपकी बारी है अब। आपका पहला क्लू है worm। Apple. और सोचिए। Leaves. कीप गेसिंग। Trees. Trees. Pest. Pest. Farmer's friend. आपका अगला क्लू है secretion। Manure. Manure. worm याद रखिए। Worm dung. worm क्या secrete करते हैं? Liquid. आपका अगला क्लू है फैब्रिक। तीनों क्लूज को जोड़िए अब। आपने कहा सिल्क एंड सिल्क इज द करेक्ट आंसर। राइट वर्ड यही था मेरा। तो इस तरह खत्म होता है हमारा ये सस्पेंस और मिस्ट्री से भरा हुआ राउंड जिसका नाम था व्हाट्स द राइट वर्ड। चलिए देखते हैं हमारे इस तीसरे गेम में किसने कितने पॉइंट्स कमाए हैं। भवन राजा जी चेन्नई, 3 क्लूज की जरूरत पड़ी, आपने कमाए हैं 50 पॉइंट्स। बिरला विद्यानिकेतन, आपको भी 3 क्लूज की जरूरत पड़ी और आपने भी कमाए हैं 50 पॉइंट्स। बख्शी जगबंधु, आपको मैंने 3 क्लूज दिए, 30 सेकंड्स भी दिए, लेकिन आप हमारा राइट वर्ड ढूंढ नहीं पाए हैं। इसका मतलब आपने कमाए हैं 0 पॉइंट्स। जैसे कविताएं बहुत कम शब्दों में बहुत कुछ कह जाती है, मैं भी बस इतना ही कहूंगा कि हम जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। फिर मिलेंगे इसी शो पे जिसका नाम है वर्ड मैच। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद इस
लाजवाब खेल में। आगे बढ़ने से पहले लेट्स फाइंड आउट स्कोर बोर्ड के आंकड़े किस टीम की परफॉर्मेंस से ज्यादा इंस्पायर हुए हैं। ये रहे अभी तक के स्कोर्स। भवंस राजाजी चेन्नई, आपका स्कोर है 130 पॉइंट्स, आप है थर्ड पोजीशन पे, वेल प्लेड। बक्सी जगबंधु, आप सेकंड पोजीशन पे आ गए हैं, आपका स्कोर है 140 पॉइंट्स, वेल प्लेड। और बिरला विद्यानिकेतन, आप है फर्स्ट पोजीशन पे और आपका स्कोर है 190 पॉइंट्स, वेल प्लेड। जॉयस कैरल ओट्स ने कहा है, prose, it might be speculated, is discourse. Poetry, ellipsis. Prose is spoken aloud, poetry overheard. The one is presumably articulate and social, a shared language, the voice of communication. The other is private, elusive, teasing, sly, idiosyncratic as the spider's delicate web, a kind of witchcraft unfathomable to ordinary minds. समझ में आया? आया? There were many difficult words there, huh? Idiosyncratic, ellipsis, elusive, unfathomable. Beautiful words to speak, to hear, to understand. But if you do not spell them right, you cannot communicate their meanings effectively on the page. ये है हमारा अगला गेम। इस गेम का नाम है स्पेलाथॉन। ये एक बजर गेम है पहले गेम की तरह। आपको अंग्रेजी के शब्द दिए जाएंगे, आपको मुझे सही स्पेलिंग बताने हैं उनके। हर सही स्पेलिंग के लिए आपकी टीम को मिल सकते हैं 20 पॉइंट्स। हर गलत स्पेलिंग के लिए आपकी टीम को मिलेंगे -10 पॉइंट्स। तो शुरू करते हैं हमारा ये आखिरी गेम। गेम का नाम है स्पेलाथॉन। Now moving on to our first word, rhapsody. Bhavans Rajaji, Chennai. RAPSODY. ये आपकी स्पेलिंग गलत है। करेक्ट स्पेलिंग होती है RHAPSODY। -10 पॉइंट्स भवंस राजाजी चेन्नई। अगला वर्ड तीनों टीम्स के लिए, डाइकोटमी। बिरला विद्यानिकेतन दिल्ली। DIACHOTOMY. I'm afraid आपका जो जवाब है बिल्कुल गलत है। डाइकोटमी की करेक्ट स्पेलिंग है DICHOTOMY। डाइकोटमी। आपने एक A लगाने की कोशिश की उसमें और 10 पॉइंट आपके कम हो गए। अगला वर्ड तीनों टीम्स के लिए, फ्यूशिया। भवंस राजा जी। FUSCHIA. फ्यूशिया, उसकी जो स्पेलिंग होती है वो होती है FUCHSIA, फ्यूशिया। यानी कि आपकी स्पेलिंग जो है वो गलत है, -10 पॉइंट्स। अगला शब्द तीनों टीम्स के लिए, हाइड्रोलिक। भवंस राजा जी चेन्नई। HYDRAULIC. ये बिल्कुल सही जवाब है for 20 पॉइंट्स, वेल प्लेड। अगला शब्द juxtaposition. 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 And I'll have to give you the spelling. I'm afraid किसी ने attempt नहीं किया है। इसकी spelling है JUXTAPOSITION. अगला शब्द है phenomenon. बक्सी जगबंधु भुवनेश्वर ने बजर दबा लिया है इस बार। PHENOMENON. Phenomenon. The correct spelling यही है for 20 points. Well played. अगला शब्द तीनों टीम्स के लिए for 20 points. Mystique. MYSTIQUE. That is the correct spelling. 20 points to you. अगला शब्द penicillin. PENICILLIN. That is the correct spelling. 20 points to you. अगला शब्द impromptu. IMPROMPTU. आपकी जो स्पेलिंग है वो बिल्कुल सही है। भवन राजा जी, आपने कमा लिया है 20 पॉइंट्स। सबके स्कोर्स बहुत क्लोज हैं। और ये अगला शब्द मैं आपको देने वाला हूँ, टैम्बरीन। TAMBORIN. आपका जवाब तो बिल्कुल गलत है, -10 पॉइंट्स हो गए आपके। टैम्बरीन की करेक्ट स्पेलिंग है TAMBORIN।
S-P-E-L-L-O-U-R-I-N-E. And that brings us to the end of our last game, जिसका नाम था Spellathon. तो आइए देखते हैं हमारे इस आखिरी गेम के स्कोर्स. भवन राजा जी चेन्नई, आपने कमाए हैं 10 पॉइंट. बिरला विद्या निकेतन, आपने भी कमाए हैं 10 पॉइंट. और बक्सी जगबंधु भुवनेश्वर, आपने कमाए हैं 40 पॉइंट्स. वेल प्लेड. नाउ इट्स टाइम टू सी कौन सी टीम थी दूसरी टीम्स के मुकाबले ज्यादा सुर में. Here are the final scores for today. Bhavan Radaji Chennai, you have finished at 3rd place with a total of 140 points. Well played. Bakshi Jagabandhu Bhuvaneshwar, आप है 2nd position पे with a score of 180 points. Well played. Birla Vidya Niketan Delhi, you have finished in 1st position with a total of 200 points. Well played. और उर्मी और ऋषभ, कंग्रेचुलेशंस, आप दोनों जा रहे हैं वर्ड मैच के अगले स्टेज में, यानी कि वर्ड मैच के सेमीफाइनल्स में. वेल प्लेड. And that brings us to the end of this episode of Word Match. Since this is an episode dedicated to poetry, I will break with tradition and leave you with some words by a great poet, Dylan Thomas. I could never have dreamt that there was such goings on in the world between the covers of books. Such sandstorms and ice blasts of words. Such staggering peace. Such enormous laughter. Such and so many blinding bright lights splashing all over the pages in a million bits and pieces, all of which were words. Words, words. And each of which were alive forever in its own delight and glory and oddity and light. And with those words ringing in our ears, that's it for today. आपके सवाल और फीडबैक आप हमें ईमेल कर सकते हैं wordmatch@zq.in पर. मैं केसी शंकर जल्द ही मिलूंगा आपसे वर्ड मैच के अगले क्वार्टर फाइनल में. मगर तब तक प्लीज खेलते रहिए और किताबें पढ़ते रहिए. Now tell me, if you really know where the apostrophe is meant to go, that your is not quite the same as your. That's the sort of mistake I deplore. Learn the difference between who's and whose, and never mix up blues with lose, which are the opposites of tight and fine, or you'll get left right behind. In this language game we're about to play, and if you say word, you'll be late by a day. Then your efforts won't come up to scratch when we get down to play some word match.